Hello students, welcome to in our aldehyde, ketones and carboxylic acids. As we know that at presently we are focusing on point number 12.4 and which is based on the chemical reactions of aldehydes and ketones. As we know that under the title of these chemical reactions of aldehydes and ketones, we at presently studied a different categories. So under these categories, first we completed a nucleophilic additions reactions. Then after nucleophilic additions reactions followed by eliminations reactions. Next one is the reduction, then oxidations, and in last sessions we started our journey of our reactions with alkalis. It's the most important point regarding to any competitive examinations. So we know that if the acidity of this alpha hydrogen is a major factor for this process. We know that the acidity of alpha hydrogen is due to the carbonyl group, and this carbonyl group adjacent carbon is called as an alpha carbon, and the hydrogen connected with this alpha carbon is called as an alpha hydrogen, and this alpha hydrogen is a acidic in nature. So that's why they react with some dilute bases like NaOH, Na2CO3 and BaOH twice, and first they form either beta hydroxyaldehyde or a beta hydroxy ketone, right? And now this beta hydroxyaldehyde or ketones are collectively called as aldols, and the reaction is called as an aldol condensation. So in this case we know that formaldehyde, benzaldehyde, benzophenone, chloral, they do not have alpha hydrogens. It means that they do not undergo aldol condensation. The mechanism of this aldol condensation in a three different steps. First remove the H plus, or the first step is like that. The OH minus of the base is abstract one of the acidic alpha hydrogen to form an enolate ion, and this enolate ion is stabilized by resonance. It's a slow step, so it's a rate determinating step. Then after, this enolate ion is a very good strong nucleophile, so it attacks on the carbonyl group of second molecule of either aldehyde or ketone. So it means that the second molecule acts as an electrophile and they form an anion. After the anion formation, this anion finally abstract a proton from the water to form an aldol. And then after, the dehydrations of aldol gives alpha beta unsaturated aldehydes or ketones. So in last sessions we saw the two different mechanisms, one from ethanol and one from propanol. Today I saw one more mechanism of a ketone, and it's called as an acetone. So what is in the case of acetone? So first one, acetone means we have a OH minus, and this OH minus is attacked with a H. This is CH2, here C double bond O, CH3. We know that this is a carbonyl carbon, so adjacent carbon is called as an alpha carbon, and this hydrogen is an alpha hydrogen. So this OH minus is attached to, or they abstract this H from alpha hydrogen. Okay, so at that time this particularly bond is attracted towards to this carbon, and it's a very slow step. So it's a slow step, and we know that always slow step is a rate determinating step. Okay, so what we gain in this reaction, so which is written like that, this is CH2 C double bond O CH3, and it's a minus in nature, right? Okay, now it's a resonance phenomena can take place. So now this CH2, so this, okay, this is transfer toward between these two carbon, and at that time O is more electronegative, so we get a product like that, CH2, right? This is double bond, here CO, O is a minus, and here the CH3, right? Okay, so there is a water molecule is also liberated. So this is nothing but we know that it's a enolate.
is a simple step. In the first molecule of acetone, they release H plus and convert it into very good carbanion, very good nucleophile. Now this nucleophile is attacked towards to the another molecule of acetone. So now this another molecule of acetone is like that: CH3, C double bond O, CH3, and the CH2, this is minus C double bond O, CH3. This is the enolate ion, right? Now this enol, we know that this is delta plus and this is delta minus, so it's attacks towards to here. So at that time your pi electron shifted to oxygen. So it's a very good nucleophilic attack. It's a very good nucleophilic attack. Okay, so this nucleophilic attack gives what? So this nucleophilic attack gives CH3, right? This is C, okay? Here CH2, C double bond O, CH3. So now this carbanion is attached to this partially carbon positive, and here we know that this is the O minus and CH3. So this compound is nothing but it's a one type of anion. It's a one type of anion. Next, in the step 3, now this anion CH3, C, CH3, O minus, okay, this CH2, C, double bond O, CH3 is reacts with a water. जो पहले यहाँ पे वो आइसोलेट हुआ था वही वाटर के साथ वो रिएक्शंस करेगा. सो नाउ दिस H प्लस, दिस O माइनस इज अटैच्ड विद H, एंड एट दैट टाइम OH माइनस इज रिलीज. सो वी गेट अ प्रोडक्ट इज लाइक दैट. दिस इज रिटन लाइक दैट: CH3, C, CH3, OH, CH2, C, double bond O, CH3. Okay, fine. So it's a beta hydroxy ketone. This is nothing but it's a one type of beta hydroxy ketone. Beta hydroxy ketone. And this beta hydroxy ketone, in some language, they also known as a ketols. Some people says that it's nothing but it's a ketols, no problem. Some case aldol. Aldol में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका specific नाम है ketols because we form this beta hydroxy ketone from ketone, so that's why it's called as in ketols. And further, now the hydration, further dehydration in presence of acidic media, so it's a dehydration phenomena can take place, and we get a product like that. This is CH3, C, CH3, this is double bond, here CH, C double bond O, CH3, right? Okay, so CH3, C, CH3 double bond, CH, C double bond O, CH3. So with this reference we get a product is called as a what is the IUPAC name? What is the IUPAC name of this particularly compound? Is a 4-hydroxy 4-methyl pentane 2-on, or sometimes it's called as a diacetone alcohol 2, right? And now the further of the dehydration of this diacetone alcohol gives what? So gives it's a 4-methyl pent 3 in 2-on. What is the other name of this compound? We know that it's a macetyl oxide. It's a macetyl oxide. So these are the different steps that can be to understand the mechanism of this ketol condensation or aldol condensation. So this is step number 1, this is step number 2, and this is step number 3, right? And it's a dehydration process. So this is all about the mechanism of this self-aldol condensation. Now we move to the another point. जैसे हम आपको कई बार ऐसा भी समझाते हैं कि भाई मुझे क्रॉस aldol कंडेंसेशन भी पढ़ना है, लेकिन आप थोड़ा सेल्फ aldol कंडेंसेशन के बारे में देखिए. आप क्या होगा, देखिए मैं उसको एक शॉर्टकट में भी आपको थोड़ा कन्वर्ट कर देता हूं.
मैं आपको ये दिखा देता हूं, जैसे मैं आपको थोड़ा ट्रिक में भी दिखाता हूं। देखो ट्रिक कैसी है, मैं अभी सेल्फ aldol कंडेंसेशन के साथ ही आपके साथ बात करना चाहता हूं। ठीक है, देखिए मेरे पास है ना एसीटोफिनोन है, देखिए आप मेरे पास एसीटोफिनोन है, दिस इज एसीटोफिनोन। ओके, नाउ what they ask in the examinations, 2 mole of this acetophenone, 2 mole of this acetophenone or 2 molecules of this acetophenone gives what, right? Give the aldol condensation product। तो हमें पहले क्या करना चाहिए, देखिए मैं आपको थोड़ा इसका आपको मैकेनिज्म की तरह से ही सोचना होगा। अब देखिए पहले मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट वन एसीटोफिनोन है ना, मैं पहला एसीटोफिनोन ले लेता हूँ, C डबल बॉन्ड, और उसका मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे CH2 माइनस कर देता हूँ। रेडी, देखिए मैं यहाँ पे आपको मैकेनिज्म भी समझा रहा हूँ, किस तरह से मैकेनिज्म हो सकता है यहाँ पे। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन था ही नहीं, यहाँ पे ही अल्फा हाइड्रोजन था, तो मैंने यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन में से वो माइनस निकाल दिया। ठीक है, ओके फाइन, तो ये तो कार्बेनाइन हमारा हो गया। अभी जो दूसरा एसीटोफिनोन है, दूसरा एसीटोफिनोन मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे आप देखिए, ये मेरा दूसरा एसीटोफिनोन है, C डबल बॉन्डो CH3। तो मुझे पता है यहाँ पे डेल्टा प्लस है और यहाँ पे डेल्टा माइनस है, और जो माइनस है उसका जो अटैक है वो यहाँ पे हो जाएगा। फाइन, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा ना, देखिए आप, मेरे पास जो ये एसीटोफिनोन था, तो उसमें क्या होगा, ये पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बताया है, देखिए आप, दिस इज O माइनस, राइट। ये मैंने यहाँ पे CH3 डाला हुआ है, ये CH3 मैंने ऑफ करके अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, CH2 होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्डो है और ये रिंग है, और जो पानी वाला जो H था वो यहाँ पे आ जाएगा, तो मुझे मिल गया। फिर भी आपको उसको चेक करना है, डबल चेक करना है। तो आप देखिए दिस इज अल्फा एंड बीटा, सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, सो दिस कंपाउंड इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे से हम पानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस से पानी निकालेंगे, तो यहाँ से OH चला जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H चला जाएगा, तो उसके बीच में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो प्रोसेस होगी वो यहाँ पे हमें दिखाई देंगी। देखिए आप, यहाँ पे CH है, यहाँ पे C डबल बॉन्डो है, और यहाँ पे जो है, तो मुझे ये कंपाउंड है वो मिल गया है। देखिए आप उसका नाम देखिए, इसका नाम क्या होगा, 1,3-डाइफिनाइल ब्यूट 2E1 ऑन होगा। फाइन, तो उसका एक और भी नाम है, उसका नाम है डाइफोन भी उसको हम बोल सकते हैं। तो मुझे ये एसीटोफिनोन में से जो मेरे कोई भी आपको जो भी एग्जांपल है ना, आप उसको मैकेनिज्म के तरह से सोचिए। वो मैकेनिज्म है ना, आप कई बार कैसा लगता है कि सभी को कि मैकेनिज्म तो सर बहुत हार्ड चीज है, वो उसको हम, लेकिन उसका सिंपल है। आप उसमें से पहले अल्फा हाइड्रोजन निकाल दीजिए, और जो जैसा कार्बेनाइन है उसका अटैक आप सेकंड स्टेप में जैसे हम दूसरा जो मॉलिक्यूल्स है उसके साथ करा दीजिए, फिर जो H है वो लगा दीजिए O के पास और पानी निकाल दीजिए, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ऐसे तो कहीं एग्जांपल्स ऐसे हम ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक इथेनॉल का भी समझाया, एक प्रोपेनॉल का भी समझाया, मैंने प्रोपेनॉन यानी एसीटोन का भी समझाया, अब मैंने एसीटोफिनोन का भी समझाया। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि मुझे किस तरह से सोचना है। ठीक है, अभी मैं आपके पास एक अलग चीज लेके आ रहा हूं। मैं अभी आपके पास क्रॉस aldol कंडेंसेशन, ये जो क्रॉस aldol कंडेंसेशन है ना, वो इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो जो आपकी एग्जामिनेशंस के लिए बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ से निकल रहे हैं। अभी भी नीट का जो अभी 2020 का एग्जाम था, तभी भी वो उसने एक क्वेश्चन यहीं पे से ही डाला हुआ है। सो वी नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस aldol कंडेंसेशन। So aldol condensation is not conformed to the condensations of two molecules for the same aldehyde or ketone। अगर हम सेम aldehyde और ketone से करेंगे तो हम उसको self aldol condensation बोलेंगे, right? But it can also take place between two different aldehydes or two different ketones or one aldehyde one ketone. They are called as a mixed aldol condensation or cross aldol condensation। अब देखिए, जैसे मेरे पास दो aldehyde अलग अलग है और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। सो इफ वी हैव बोथ ऑफ देम कंटेन अल्फा हाइड्रोजन्स, सो इट्स गिव्स अ मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल क्रॉस aldol कंडेंसेशन बिटवीन, अभी मैं क्या आपको दिखाना चाहता हूं, आप देखिए, मैं आपके पास ये भी रखना चाहता हूं ताकि आपको पता चल जाए।
कि मेरे पास एक ये इथेनॉल है, एक मोलेक्यूल इथेनॉल है और एक प्रोपेनॉल है। देखिए मैं यहाँ पे आपको यहाँ से थोड़ा अलग करके समझा रहा हूँ। जैसे मेरे पास इथेनॉल है, CH3CHO है, और दूसरा मुझे दिया गया है, दूसरा मोलेक्यूल है वो है CH3CH2CHO है, राइट। उसका मैं डाइल्यूट NaOH से साथ रिएक्शंस करवाना चाहता हूँ। तो पहले तो ये मिक्स aldol कंडेंसेशन है, बिकॉज हियर द टू डिफरेंट मोलेक्यूल्स आर प्रेजेंट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे CH3CHO, यहाँ से 4 प्रोडक्ट मिलेगी। 4 प्रोडक्ट कैसे, ये तो 1 मोल है ना, ये भी 1 मोल है, राइट, ये इथेनॉल भी 1 मोल। तो आप उसका स्प्लिटिंग कर दीजिए। जो 1 मोल है उसको आप ऐसे देख लीजिए कि उसका, जैसे मैं इसका 33.3% में इसको डिवाइड करिए, राइट। इसका भी जैसे मेरे पास 1 रुपीस होता है, उसका 1/3 पोर्शन आप देखिए, तो उसका जो 1/3 पोर्शन 33.33% है, उसके ही 33.33% के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो सेल्फ aldol कंडेंसेशन से वो रिएक्ट करेगा। तो मुझे ये प्रोडक्ट दिखेगा ना, CH3 जो मैंने अगले लेक्चर में आपको समझाया था, तो मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए आप, राइट। उसका नाम क्या है मुझे मालूम है, इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ये मुझे मिल गया। देखिए ये सेल्फ aldol कंडेंसेशन से मिला हुआ है। ये कौन से सेल्फ aldol, इसका सेल्फ aldol कंडेंसेशन से मिला हुआ है। जैसे मेरे पास इथेनॉल का सेल्फ aldol कंडेंसेशन किया। देखिए दूसरा, इस प्रोपेनॉल इज रिएक्टेड विद प्रोपेनॉल, सो वी गेट अ प्रोडक्ट इज लाइक दैट। दिस इज CH3CH2 CHOH, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3CHO, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे भी मिल गया, वो इसका क्या होगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनॉल, ये भी सेल्फ aldol कंडेंसेशन से मिला हुआ है। अब देखिए ये जो दोनों मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दोनों मुझे मिल रहा है सेल्फ कंडेंसेशन से, मुझे मिल रहा है सेल्फ कंडेंसेशन, राइट। सेल्फ कंडेंसेशन से मुझे मिला है, ये तो मुझे मिलेगा ही। लेकिन मुझे इंटरेस्ट अभी कहां पे है, तो मुझे क्रॉस कंडेंसेशन में है। क्रॉस यानी कि इसका जो इनोलेट होगा वो उसके घर पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और उसका जो इनोलेट है ये उसके घर पे अटैक करेगा। अब देखिए मैं इसको इस तरह से बता रहा हूं, इसके घर में इसका इनोलेट में लेना चाहता हूं। अब देखिए मैं इसका मैकेनिज्म समझा रहा हूं। CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे H है। तो इसका इनोलेट क्या होगा, ये होगा ना CH2 CH3 CHO, ये H निकल जाएगा तो यानी माइनस हो जाएगा ना, तो विच इज अटैक टूवर्ड्स टू हियर। तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे ये मिलेगा CH3 है, यहाँ पे CO है, ये तो H ही है, यहाँ पे CH है, CH3 है, CHO है, फिर मैं यहाँ पे H डाल दूंगा तो मुझे मिल गया। तो इसमें क्या हुआ है कि द इनोलेट ऑफ दिस प्रोपेनॉल इज अटैक ओवर टूवर्ड्स टू द इथेनॉल। तो मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया है। तो जो मुझे ये प्रोडक्ट मिला है उसका नाम क्या है, 1 2 3, तो इट्स कॉल्ड एज 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ये मुझे मिल गया। अभी मैंने क्या वो किया था, इसका इनोलेट इसके घर पे, तो मैं इसका इनोलेट भी इसके घर पे अटैक करवा रहा हूं। देखिए मैं इसका घर बता रहा हूं, CH3 है, CH2 है, सिंपल है COH, और इसका इनोलेट क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा में से वो हाइड्रोजन निकाल देना है, राइट। तो ये CH2CH हो जाएगा, तो ये इसके घर में अटैक करेगा, तो यहाँ पे पाई यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए CH3 है, CH2 है, दिस इज CH है, यहाँ पे O है, CH2 है और CHO मिल गया, और यहाँ पे O के पास हम H जोड़ देंगे, तो मुझे ये कंपाउंड भी मिल गया ना। तो उसका नाम मुझे क्या मिलेगा, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल मिल गया मुझे। फाइन, तो आपको पता चल गया होगा क्रॉस aldol में कि मुझे जैसे दोनों है मेरे पास, ये दोनों कॉम्बिनेशन, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, मुझे कितनी प्रोडक्ट मिली, 4 1 2 3 4, लेकिन इसमें से 2 क्रॉस से मिली, 2 सेल्फ से मिली, तो मुझे 4 प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगी, राइट। सो मैंने यहाँ पे, लेकिन उसका एक दिक्कत है, ये जो प्रैक्टिकली उसका क्या होगा कि वहां पे जो इंडस्ट्रीज है, सो इट्स नॉर्मली दिस प्रोडक्ट्स आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, ओके।
So therefore, cross-aldol condensation reactions between two aldehydes and ketones, both having a alpha hydrogens, are of a little synthetic value. राइट उसकी कोई सिंथेटिक वैल्यू नहीं है, उसको हम इंडस्ट्रीज में, क्योंकि उसका चार का आइसोलेशन भी बहुत इसका डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आपको ये एग्जांपल्स दिया हुआ है, ये मैंने क्रॉस aldol कंडेंसेशंस का यहाँ पे एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है कि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन था। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है, हाउएवर इफ वन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड डज नॉट पोजेस अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं ऐसा बताऊं जैसे मेरे पास फॉर्माल्डिहाइड है या बेंजाल्डिहाइड है या क्लोरल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो भी वो क्रॉस aldol कंडेंसेशन इसलिए देगा क्योंकि एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे के पास नहीं है, कोई बात नहीं, तो वो मुझे दो प्रोडक्ट देंगे, एक सेल्फ से देगा और दूसरा क्रॉस से देगा, उसमें चार प्रोडक्ट मुझे नहीं मिलेंगे। देखिए मैं उसको एग्जाम्पल्स के जरिए आपको समझा रहा हूं। मेरे पास एक एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल रहा हूं, जैसे मेरे पास है HC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्माल्डिहाइड है, और उसका मैं रिएक्शंस करवाना चाहता हूं CH3C डबल बॉन्ड OH से। अब देखिए यहाँ पे अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ के इनोलेट ये जनरेट नहीं करेगा, ये जनरेट करेगा, डेफिनेटली जनरेट करेगा। तो उसका इनोलेट इसके घर में न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है। देखिए इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, ये एसिटाल्डिहाइड के घर पे ही घुसेगा, तो वो तो सेल्फ से घुसेगा, और दूसरा प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा, क्रॉस वाला। तो क्रॉस वाला मुझे प्रोडक्ट देखना है, तो मुझे ये करना पड़ेगा, ये HCO है, यहाँ पे मैंने H दिया हुआ है, यहाँ से आप क्या करेंगे, H निकाल दीजिए, तो यहाँ पे CH2CHO हो जाएगा, और जो H निकाला हुआ है वो यहाँ पे डाल दीजिए। सिंपल है, ये सब बीटा हाइड्रोक्सी, इसका नाम क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनाल्डिहाइड। दिस इज नथिंग but this is called as a beta hydroxy propionaldehyde, ये मुझे मिल गया है, बराबर है। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूं, इसमें कई एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे यही फॉर्माल्डिहाइड है, राइट, यही फॉर्माल्डिहाइड में रिएक्शंस करवाना चाहता हूं एसीटोन के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे एसीटोन के साथ इसका रिएक्शंस करवाया हुआ है। अब देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका इनोलेट बनेगा, इसका इनोलेट नहीं होगा, तो इसका इनोलेट इसके घर पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो मैं अटैक यहाँ पे आपको समझा ही दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे इसका इनोलेट बना दीजिए, इसमें से सिंपल अल्फा हाइड्रोजन में से एक H निकाल दीजिए, अल्फा में से निकालना है, हाँ देखिए आप, और यहाँ पे H डाल दीजिए, हो गया ये 4 हाइड्रोक्सी, इसका नाम क्या होगा, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 हो गया, इसका नाम आप देख लीजिए 4 हाइड्रोक्सी। सिंपल है, कई लोगों को जैसे उसको मैकेनिज्म का पता जिसको नहीं है, क्योंकि आपकी बुक में डाला हुआ नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए ही आपको समझाया हुआ है कि अगर आप मैकेनिज्म की तरह से चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अभी मैंने ये फॉर्माल्डिहाइड डाला हुआ है ना, अब मैं यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड डालना चाहता हूँ। देखिए आप यहाँ पे मैं बेंजाल्डिहाइड दिखाता हूँ, ये बेंजाल्डिहाइड आप देखिए ये, और उसका रिएक्शंस मैं करवा रहा हूँ एसिटाल्डिहाइड के साथ, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पे अल्फा कार्बन है, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे है, तो यानी हमें सपोज के जैसे हम रिएक्शंस करेंगे तो मुझे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक सेल्फ का मिलेगा और एक क्रॉस का मिलेगा। प्रेजेंटली वी आर इंटरेस्टेड इन क्रॉस, तो मैं क्रॉस का ही बता रहा हूं आपको। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बेंजाल्डिहाइड है, उसके घर पे हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे O कर दिया, यहाँ पे H तो उसके अंदर ले लिया, यहाँ पे उसका इनोलेट बना दिया CH2C डबल बॉन्ड OH, और उसका H यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, बराबर है, बिल्कुल सही है, आपको पता चल गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर आप बाद में इसमें से पानी निकाल दीजिए, और लास्ट प्रोडक्ट में जाना है तो यहाँ से OH और यहाँ से H डाल दीजिए, तो मुझे ये जो रिएक्शन है वो ऐसा मिल गया, CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये मुझे मिल गया, राइट। हम जानते हैं इसका नाम सिनेमाल्डिहाइड है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिनेमाल्डिहाइड। मैं आपको इसके कई वर्जन में दिखा सकता हूं, कई वर्जन हम देख सकते हैं, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, तो मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में यही मैं क्रॉस aldol पे ही रुका हुआ हूँ। मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा कराना चाहता हूँ, आप देख लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, एनी डिफिकल्टी यू फेस, डेफिनेटली यू व्हाट्सएप मी,
कि मुझे ये सर जी यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, आप 2 बार 3 बार भी एक वीडियो उसको रन करके देखिए। मैंने मैकेनिज्म पे इसलिए बहुत ज्यादा वेटेज दिया हुआ है क्योंकि ट्रिक है ना वो मैकेनिज्म में से ही बनेगी। लॉन्ग वे है, आपको कहीं शॉर्टकट वही पे ही है कि जैसे लॉन्ग को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपका शॉर्टकट भी अच्छी तरह से हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।